ready to embrace them. तो अभी ये क्वेश्चन आएगा कि how one can withdraw like that? तो आंसर अभी आएगा यहाँ पे in verse number 59 is one of the most important verse. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनं रसवर्जं रसोऽपि यस्य परं दृष्टा निवर्तते. Yeah, read the translation. Though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense object remains. But ceasing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. Yes. तो एक पर्टिकुलर टर्म यहाँ पे यूज किया गया है परम दृष्टवा. परम दृष्टा यानी कि हायर टेस्ट. इसलिए हमारे रेस्टोरेंट का नाम ही ऐसा रहता है इसको भी गोविंदा का हायर टेस्ट, राइट? बिकॉज दिस इज प्रसादम. लोअर टेस्ट इज व्हाट? Just eat food, but higher taste is honor prasadam. Just like आपने एक example दिया higher taste का. You don't feel to hear so many other things. This is an example of higher taste. So अर्जुन यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये व्यक्ति ऐसे कैसे विड्रॉ करेगा यार? How it is possible? कृष्ण बोले नहीं बेटा करेगा वो. कब करेगा? When he gets the higher taste. Higher taste मतलब क्या? See, there are two things, lower and higher. बराबर है नहीं? Once you get the higher taste, lower things they don't matter to you at all. समझे कि नहीं? यहाँ पे कितने लोग वेजिटेरियन हैं? सब लोग वेजिटेरियन हैं. Quite a few. वो अंडा वेजिटेरियन बोलने लगते हैं. कोई बात नहीं. One stage बढ़ गया आगे, धीरे-धीरे बढ़ेगा. So once you develop taste for vegetarian food, तो नॉनवेज अट्रैक्ट नहीं करता. मच्छी मार्केट में कैसे जाते लोग? नाक बंद करके. स्मेल आ रहा है. मौसी 1 किलो देना. जब इतना स्मेल आ रहा है तो खा के मरे हो. If it is so, disgusting, rotten food, why are you eating that? जोई कैसे सोई एकदम मस्त. She is vegetarian, right? नहीं, dogs are not vegetarian. But आपने वेजिटेरियन बनाया होगा ना उसको? Mostly, most of the time. क्योंकि dog food में non-veg रहता है. थोड़ा भी have to give up as per her taste, but most of the time she eats इसलिए peaceful. oats वगैरह वही खाती है. Right. So this is the term used, higher taste, right? क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन कर सकता है कि is it something like a sick person who is not able to engage his senses, so he just withdrawing his senses? बीमारी में ऐसा होता है ना? You can't engage your senses. But does that person become sthapargya or devotee fixed up in bhakti? No. ऐसा नहीं होता है. Similarly, ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कल से मैं कुछ भी नहीं बाहर देखूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, कुछ नहीं. I am just ऐसे नहीं बनेंगे. ऐसा नहीं हो सकता. आपको अगर लोअर टेस्ट गिव अप करना है, you need to acquire higher taste. It doesn't happen like that. और बाहर की दुनिया में यही स्ट्रगल चल रहा है लोगों का. People want to become good, they want to become nice, cultured, but मालूम नहीं कि तरीका क्या है इसका. अगर हम जाके बोलते हैं कि जपान करो, चैंटिंग करो, पागल लोग हैं. This is the way you acquire the higher taste. When you offer the food to the Lord and then honor it, you get the purified food. Otherwise you are eating just karmic food, जिसमें कर्म है. ऐसा अन्न खाने से आप थोड़ी शुद्ध बनने वाले हैं. Similarly, when you hear so many things, you are acquiring so many vibrations. But when you hear transcendental sound vibration, like kirtan, katha, इससे क्या होता है? You purify your consciousness, right? तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि no, Arjun, it is not like that. You have to acquire higher taste. Even to the extent, आज आप इतना philosophy सुन रहे हैं, just philosophy is not enough for you to survive in spiritual path. Yeah, an application for what? When you apply, you get the higher taste. अरे बाबा, unless you get good experience, just philosophy cannot help you. You cannot survive. कितना भी सुनो आप, बहुत सुन लिया, सिद्धांत सुन लिया, सब कुछ, लेकिन टेस्ट चाहिए ना आपको. आज आपने सुना कि हाँ मांसाहार नहीं करना चाहिए, लेकिन मांसाहार कैसे छोड़ोगे जब तक आपको उधर ज्यादा स्वाद नहीं आएगा, भगवान की भक्ति में, रस में, भगवान के प्रसाद में. उधर जब आनंद आएगा अपने आप छूट जाएगा.
राइट? पुराने गाने सुनना कैसे छूट गया? मैं जब कॉलेज में था मेरे पास इतना बंडल था, इतना बड़ा लेटर्स का, हरे कृष्णा लेटेस्ट रिटर्न टू सो एंड सो, इतने सारा बंडल था मेरे पास. I was carrying that from I think 4, 5, 6, 7 years मैं अपने साथ लेके घूमता था जहाँ भी जाता था. But बाद में मैं 2008 I think I joined ISKCON में आ गया, भगवद्गीता पढ़ा और ऐसा लगता था ये क्या है, क्या यूजलेस चीज़ है ये इतना समय बर्बाद इतना लिखने में. उस टाइम कंप्यूटर में मतलब हाथ से लिखते थे, हैंड राइटर, इतना बंडल था मेरे पास. फॉर व्हाट? किसके लिए? तो एक दिन लाइटर लिया, जला दिया एक साथ पूरा बंडल. मतलब कुछ मतलब ऐसा लगता था कि व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम. जिंदगी का मतलब सबसे प्रीशियस ह्यूमन लाइफ के इतने सारे सो मेनी आवर्स जस्ट स्पेंट ऑन यूजलेस कुछ भी लिखने के लिए. तो यू विल फील दैट एक्चुअली व्हेन यू एक्सपीरियंस कृपा in the association of the devotees, when you experience mercy of the Lord and devotees, useless लगेगा. That doesn't mean you then just go on the street and बाकी जो सब कर रहे हैं उनको देख क्या टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं. वो कर रहा है उसको करने दो. He will also experience when he gets the mercy eventually. He will also feel it's not worth investing time, right? So this is the way Krishna is telling this will happen. विषय नहीं बदलते. अदरवाइज क्या है ना कि just by trying to become a devotee, your taste for material things will not go away. अब हुआ है क्या ऐसा, कुछ होता है क्या ऐसा? You need to practice. There is no shortcut in spiritual life. There is no shortcut anywhere. Is there any shortcut in business? You have to work hard, right? Is there any shortcut in raising the kids? Is there any shortcut to keep the good husband wife relationship? शॉर्टकट है क्या कुछ ऐसा? हर जगह मेहनत करना पड़ता है, हर जगह इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है. एवरीवेयर यू हैव टू वर्क हार्ड. सो सिमिलरली व्हेन यू कम टू स्पिरिचुअल लाइफ, इधर मेहनत नहीं करना पड़ेगा क्या? जस्ट बाय सेइंग कि मैं एकदम आई एम हिंदू, आई एम सो स्पिरिचुअल, आई गो टू टेंपल, बट देन आफ्टर कमिंग देयर आई ईट मीट, देन आई गो टू वॉच सिनेमा आल्सो, देन अगेन आई बिकम हिंदू. सैफ्रॉन फ्लैग खाली हाथ में लेने से यू डोंट बिकम एक्चुअली हिंदू. You have to practice. उसके लिए मेहनत लगेगा, राइट? इसीलिए चैंटिंग करना पड़ेगा. करें आप लोग चैंटिंग? How many rounds? 4 minimum है. What about him? 1. बेचारा डर के बोल रहे हैं. धमकाया तो नहीं ना आपने उसको? बहुत. हरे कृष्णा. What about you, Nilesh? 2. You're 2. 4 to 8. 2. 4 to 8. 4 to 8. 4 to 8. What about you? Very good. Progress हो रहा है. 1 to 2. ये आजकल ऐसा बहुत चल रहा है. 1 to 2. Anyway, 2. आपको फ्री है. You can chant any number of rounds. Right? So it is like that. We have to get higher taste. परम दृष्टवा. Now actually यहाँ पे भगवान ने ये नहीं बोला कि परम दृष्टवा क्या है करके, but हम लोग समझ रहे हैं because we are understanding from the comment of the Prabhupada. Actually higher taste क्या है अर्जुन को समझ में नहीं आया यहाँ पे. वो कह रहे हैं higher taste. हाँ, अर्जुन जाके प्रश्न पूछे गए higher taste क्या चीज़ है? The higher taste is actually taste in serving the God, taste in chanting His name, in associating with the devotees, honoring prasadam. This is the taste, and then you will pass. Yes. Because we are fighting the battles with Maya, right? And it is not easy to fight unless we are strengthened within, right? इधर का बाहर का बैटल कैसे लड़ते हैं आप? चलेगा, no problem. No problem. Speaker? वो चलेगा, बैकअप बैटरी है थोड़ा बड़ा. Anyway, we are already 12:10. 10-15 मिनट में खत्म. So like that. Then Prabhupada एक दो चीज में पढ़ता है तो Prabhupada में कहते हैं, unless this first line see,
unless one is transcendentally situated, it is not possible to cease from sense enjoyment. The process of restriction from sense enjoyment by rules and regulations is something like restricting a diseased person from certain type of eatables. ऐसा होता है कि पेशेंट को बोलेंगे ये मत खाओ मत खाओ, उसका टेस्ट चला जाता है कि उसके लिए नहीं. He is waiting कब बीमारी दूर होगा and then झपट्टा मार दूंगा पूरा, रिवेंज के साथ. एक हफ्ता कंट्रोल किया था, पूरा फिनिश सब जितना भी फ्रिज में रखा हुआ है. It doesn't happen like that. The patient, however, neither likes such restriction nor does lose his taste for eatables. Similarly, sense restriction by some spiritual process like Ashtanga Yoga in the matter of yam, niyam, asana, pranayam, pratyahara, dhyan, dharana, etc. is recommended for less intelligent person who have no better knowledge. But one who has tasted the beauty of the Supreme Lord Krishna in the course of his advancement in Krishna consciousness no longer has a taste for dead material things. Therefore, restrictions are there for the less intelligent neophyte in the spiritual advancement of life. By such restrictions are only good until one actually has a taste for Krishna consciousness. समझे कि नहीं? इसलिए ज़्यादा टाइम आप टिक नहीं पाएंगे खाली विधि विधान से, ये मत करो वो मत करो, नहीं टिक पाओगे. आज मैं आपको पूछता हूँ चैंटिंग कितना करते हो, आप करते हैं. कुछ दिन बाद प्रोग्राम खत्म, मैं पूछूंगा नहीं, तो आप चैंटिंग करते रहेंगे. It will not happen unless you yourself develop a taste. इसीलिए the process is to work hard from very beginning. When one is actually Krishna conscious, he automatically loses his taste for pale things. Pale and stale मतलब जिसको कुछ मसाला नहीं है, नमक नहीं है, ऐसी चीजें खाने में कुछ मजा आता है क्या? तो भौतिक चीजें भी ऐसे ही है, ऐसे अपीयर होना चालू हो जाएंगे धीरे धीरे, जिसको कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा है इसमें कुछ, राइट? फीका लग रहा है, जैसे नमक नहीं है, मसाला नहीं है, it's like a dead thing. It's then मैंने खाया क्या? चिन्मय मिशन में प्रसाद देते हैं ना बिना नमक के, नमक अलग है जिसको चाहिए डालो. इसलिए मैं इसको अन्य हूँ. हम लोग नमक डाल के खाते हैं. काफी का तो मिर्ची कितनी होती है? Yes, we use everything, whatever. मिर्ची बहुत होती है. Whatever is allowed. जिसको जो है नॉन स्पाइसी बनता है, जिसको जो चाहिए वो ले लो, एंडिंग करो. Because our process is not dependent on external arrangements. Actually देखा जाए तो, it is not by external setup you will become devotee. That requirement is there, but unless you yourself develop a desire within your heart by your endeavors. आपका endeavor क्या है? 24 घंटे में से 2 घंटा. Out of 24 hours, 2 hours for the Lord. 22 घंटा जो करना है करो, क्योंकि 22 घंटे में जो करोगे वो उसमें से कुछ भी लेके नहीं जाने वाले साथ में. Always remember, you will not carry a single farthing. 22 घंटा तो बहुत होता है. बचे कितने? 2 घंटे. वही आपके साथ जाएंगे. बैंक जमा होंगे. हाँ, this is eternal bank account. पढ़ा था ना हमने. स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायतम होते भयात्, verse number 40. Whatever done in this path has a eternal benefit. And whatever you do in the material life, it may have benefit right now, but it has no long-lasting benefit. इसलिए बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन, ऐसे तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, but if you acquire a higher taste, you can control. Otherwise, not possible. Right? आपने वो उदाहरण सुना होगा, बिल्वा मंगल ठाकुर सुना है कभी? Have you heard this example? बिल्वा मंगल ठाकुर. There is one saint in our tradition, very famous saint, Vrindavan. So actually, he was very much, before he became a devotee, he was very much attached to prostitute. चिंतामणि करके एक prostitute थी, तो उनको मिलने के लिए जाते थे ये. और एक बार ऐसा घनघोर बारिश हो रहा था, जबरदस्त. फिर भी उस दिन मिलने के लिए गया वो. फ्लड आया था रिवर में, तो रिवर में कूद गया, और उधर एक डेड बॉडी रहता ना पानी के ऊपर तैर, उसको लगा इस लॉग ऑफ वुड, उसको पकड़ के तैर के निकल गया क्रॉस. इतना मतलब इंटेंसिटी था उसको मिलने के लिए. रिवर क्रॉस करके गया, उसके घर में दरवाजे बंद थे क्योंकि तूफान बारिश हो रहा था. सॉरी, हाँ ऐसा भी बोलते हैं, डेड बॉडी वाइफ थी उसके घर में. डिफरेंट अलग अलग चीजें उसमें हैं. तो घर पे गया तो उसको अभी दरवाजा बंद था, ऊपर कैसे चढ़ूं मैं. उधर से एक रस्सी जैसा कुछ लटक रहा था, एक्चुअली इट वाज स्नेक. उसको पकड़ के चढ़ गया ऊपर. इतना डेस्परेशन था. तुलसीदास इज डिफरेंट स्टोरी, दिस इज डिफरेंट. जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर, जैसे वृंदावन सेंट, कृष्ण के भक्त थे. तो वो आगे गए
तो चिंतामणि के पास गए, चिंतामणि बोली व्हाट इज दिस, इतनी घनघोर रात में तुम मेरे को मिलने के लिए आ रहे हो, इतना एंडेवर करके। इतना एंडेवर अगर आपने भगवान के लिए किया होता ना, आप कितने महान भक्त बन सकते थे। सडनली उसके अंदर एक दीप जागृत हो गया। सच कह रही है तुम। निकल गए, चिंतामणि छोड़, सब कुछ छोड़ छाड़ के ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स वृंदावन, बिकॉज भगवान ने अंदर से दीप जला दिया। चिंतामणि बिकेम गुरु, दैट प्रोस्टिट्यूट बिकेम गुरु फॉर हिम। जब वृंदावन की तरफ जा रहे थे, बिकॉज विषय में नहीं वर्तन थे, प्रोपेंसिटी गया नहीं था अभी भी टू एंजॉय द सेंस ऑब्जेक्ट्स। जैसे जाते जाते एक जगह पे एक बावड़ी के इधर एक औरत पानी भर रही थी, उसको देख के अट्रैक्ट हो गए, बिकॉज द अट्रैक्शन वाज देयर स्टिल। So he was thinking, what I am doing here? I am in Vrindavan, I am getting attracted to all these things. तो गए वो माता जी के पास, बोले आपका हेयर पिन है क्या? बाल का हेयर पिन रहता है, बोले हेयर पिन चाहिए मुझे। बोले ठीक है ले लो। उससे आँखें फोड़ डाला दोनों, he became blind. See, these are extreme examples of determination. Then he started walking towards Vrindavan. He later became very famous saint. He composed many bhajans. और एक बार स्वयं उनको कृष्ण मिलने के लिए आए ग्वाल बाल के रूप में उनको। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं। सो क्या होता है कि these things will happen to us also while enjoying so many things in this world. Suddenly एक दिन भगवान अंदर से आवाज देते हैं, I think it's not worth enjoying. Why don't you try some chanting? Why don't you try some retreat to spiritual places? अंदर से आवाज देते हैं भगवान, लेकिन अभी होता क्या है हमारे साथ कि हम क्या कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा आगे का जर्नी। तो लाइटनिंग इज देयर इनसाइड, दीप जलेगा, लेकिन हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो पॉजिटिवली तो बुझ जाएगा वो दिया। हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है, अंदर से आता है इंस्पिरेशन। इसीलिए कहा जाता है कि आपको जब आध्यात्मिक जीवन में इंस्पिरेशन मिले, इंस्टेंटली एक्ट अपॉन इट, डू नॉट डिले। इच्छा हुई है 16 माला करने की, डू इट। इच्छा हो रही है भगवत पढ़ने की, रीड इट। इच्छा हो रही है कीर्तन सुनने की, स्टार्ट इट। डू नॉट थिंक आज के बाद में कर दो, नहीं, बिकॉज बाद में इंस्पिरेशन आएगा नहीं आएगा कुछ मालूम नहीं है। अभी आया है ना, एक्ट अपॉन इट। स्पिरिचुअल लाइफ इज वेरी रेयर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, दुर्लभ है। आपको आता है ऐसे कभी भी? आपको भी आता होगा ना कभी भी? आई थिंक यार बहुत हो गया, मैं आई थिंक आज से 4 माला करता हूँ। आता है ना ऐसा अंदर से? नहीं आता है? आपको आता है? बट देन सडनली क्या होता है? आई थिंक आई हैव so many things to do there. I think let me finish that. No, you act upon that. At least plan करो कि okay चैंटिंग करना है ना, let me plan. ऐसे तो this happens with all of us, happened with Bilal Mohan Thakur. Then how much time we have? Okay, 10 minutes है, we have 10 minutes. आप लोग सबको गर्म लग रहा है? नहीं ठीक है। You're all okay. Then इतना कहने के बाद these 2 verses, verse number 60 and 61, this is nothing but expansion of verse number 59. 59 में क्या कहा था? विषय विनिवर्तन, राइट? कि you cannot practice spiritual life so easily like this. तो 59 वर्स को एक्सपेंड करते वक्त in this verse number 60 it will describe the negative part and 61 describes the positive part of the sense control. अगर सेंसेस कंट्रोल में नहीं आते हैं या फिर कितना मुश्किल है ये बताया गया है वर्स नंबर 60 में, और कैसे कंट्रोल में आ सकते हैं बताया गया है वर्स नंबर 61 में। तो 60 वर्स यतो हि अपि कौन्ते पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथेनि हरन्ति प्रसभं मनः। या read somebody translation. पढ़िए। The senses are so strong and impetuous, O Arjuna, that they are forcibly carry away the mind even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. Yes, सेंसेस इतने खतरनाक हैं कि उनको हम लोग अगर थोड़ा भी अगर मतलब क्या बोलते हैं उसको खुला छोड़ दें, they will instantly
go in the wrong direction. और किसके लिए कहा जा रहा है? Even for the man who is of discrimination, जिसको विवेक बुद्धि है, उसको भी बुद्धि हर लेते हैं. देखो, इसके बारे में कहा जैसे मूर्ख लोग जो है ना वो संसार में यहाँ भटकते नहीं, ज्ञानी लोग भी भटकते हैं. It is not that it is that only fools they become victim of sense objects. Even the most learned people, those who have vivek buddhi, those who have heard the shastras, learned the shastras, they also can get victimized, right? इसलिए कहा गया है even of a man of discrimination who is endeavoring to control them, right? आपको जैसे आपने बताया उदाहरण, there are two channels actually, Krishna channel, Maya channel. Yeah. It will happen like this. As long as you are in Krishna channel, ऐसा लगता है Maya channel is useless. ऐसा लगता है ना? कौन उधर दुनिया में भटकेगा, ऐसे फालतू की चीजें कौन करेगा? It appears to be completely useless. But as soon as Krishna channel बंद कर दिया, Maya channel starts, then Krishna channel doesn't work only. Krishna? कौन सा Krishna? Chanting? What chanting? So कौन सा चैनल आपने स्टार्ट किया है और एब्जॉर्ब है, डिपेंड करता है आप किधर पहुंचेंगे. एक साथ दो तो नहीं देख सकते ना आप. ऐसा कभी होता है क्या? ऊपर इधर एक न्यूज चैनल चालू, नीचे क्रिकेट चालू है, एक ही स्क्रीन में ऐसा तो नहीं देख सकते ना. एक ही जगह अटेंशन दे पाएगा ना आदमी. तो सिमिलरली हियर आल्सो, as long as Maya channel is on, Krishna channel appears to be completely senseless. And as soon as you switch on to Maya channel, Krishna channel appears to be useless. है ना? इसीलिए एक ब्रह्मचारी थे, वो बोलते थे यार कौन शादी विधि करेगा, ये दुनियादारी कौन करेगा. एक दिन पता चला कि he got married. Then he saying, oh my God, I used to think like that, I got married. Because धीरे कैसे it started going away, didn't realize only. But as long as हम लोग कृष्ण चैनल में पता ही नहीं चलता है. अभी आपको लगता है कैसे गाने सुनने की इच्छा नहीं होती है ना? But then you go to some party where you have to dance. Where you have to practice. Practice. तब तो लगेगा wow, this is life. That's how we are enjoying. And every other thing what we have heard in the classes and everything, it appears completely senseless at that time. कुछ अपील नहीं करता है इंटेलिजेंस को. इसलिए क्या चाहिए? भक्ति में टिके रहने के लिए सत्संग चाहिए. बिना सत्संग के आप नहीं टिक पाओगे. कितना भी फिलोसॉफी सुनो आप, कितना भी आप हार्डकोर पंडित बनो गीता के, you cannot survive unless you have a devotee with you. The devotee will tell you, hey प्रभु क्या कर रहे हैं? चाय पी रहे? चाय छोड़ दिया था ना? छोड़ दिया था, आज एक दिन पी लूँगा. ए पागल हो गया क्या? एक बार छोड़ दिया ना, छोड़ दिया, राइट? आप लोग चाय पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर ऐसे होता है, राइट? So that's why यहाँ पे कह रहे हैं in the verse number 60 कि बड़े से बड़ा व्यक्ति even if he is trying to control, still it is difficult. तो परपोर्ट में दो उदाहरण दिए गए हैं. One example is of Vishwamitra Muni and another example is of Menaka. Sorry, और एक साउथ इंडिया के आचार्य होके गए हैं. What is his name? His name is यमुनाचार्य. और ये वर्स पढ़ेंगे तो आपको चक्कर आ जाएगा. बोलेंगे इससे इतना पावरफुल वर्स. You know Vishwamitra story? Yes. He was trying to control his senses, endeavoring. But then what happened, you know? Aji? Yeah, मेनका के ये तो पॉपुलर स्टोरी है इंडिया के ना. और उसमें ऐसे दिखाते विश्वामित्र मुनि तपस्या कर रहे हैं और सडनली क्या हो गया? हाँ? मेनका भी उसकी मेनका आ गई और फिर उनको भगा के लेके गई. तपस्या आगे का नहीं बताते कि लेटर ऑन ही बिकेम डिवोटी. विश्वामित्र मुनि, मेनका आई, रंबाई, सो मेनी, त्रिशंकु आए, बहुत सारे, लंबा स्टोरी है वो. मैंने जब रामायण ले रहा था यहाँ पे कम से कम 4-5 महीने चला होगा विश्वामित्र का स्टोरी. इतना डिटेल है उनके स्टोरी में. तो ये लोग पूरा दिखाते नहीं. लेटर ही बिकेम वेरी ग्रेट डिवोटी बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ लॉर्ड राम.
बट उनके पूर्व जीवन में पहले बता रहे हैं यहाँ पे 2 एग्जांपल है. वन वाज यमुनाचार्य, इज साउथ इंडियन आचार्य. अनदर एग्जांपल ऑफ विश्वामित्र मुनि. विश्वामित्र मुनि वाज ट्राइंग टू प्रैक्टिस योगा एंड ध्यान एनी फील्ड, बट यमुनाचार्य बाय भक्ति, उनका एक श्लोक है यहाँ पे, यदा भगवती मम चित्त कृष्ण पदार विद्ये नव रस धामनि उद्यंतुम रंतुम असति तदावधि बतनारी संगम स्मर्यमाणे भवति मुख विकार संतुनिष्ठ वनं च. Since my mind has been engaged in the service of the lotus feet of Lord Krishna and I have been enjoying an ever new transcendental humor. ऐसा होता है ना? Chanting or reading of the Shastra will appear new and new and new and new. ऐसा क्यों होता है? हर बार नया नया क्यों लगता है? फ्रेश. सेम गीता 10 साल पहले मैं पढ़ता था, अभी पढ़ता हूँ, still it appears fresh, new, new. नया नया लगता है. क्यों? इतना नॉलेज है, एक टाइम पे सब अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते हो. जैसे जैसे पढ़ते हो अंडरस्टैंडिंग का कॉन्शियस. Okay. It's transcendental knowledge. Transcendental. इस जगत के परे दिव्य. मधु मधुसूदन है. मधु मिलते हैं वहाँ पे. मधु मीन्स हनी. क्यों ऐसा होता है? It is also every time you're going through a different experience in your life at that time, and you resonate the teachings of the Gita with that experience every time. So every time you are not in the same experience also. Okay, because अपना लाइफ भी चेंज होते रहते हैं ना. Yeah. और नहीं चेंज हो रहा तो जैसे कोई व्यक्ति अभी रिटायर हो चुका है लाइफ में से, उसका काम सुबह से शाम तक क्या है? बैठे रहना एक जगह पे. Just giving an example. Where is family tradition? Out, one out. Where? Flamingo. हर रोज फ्लेमिंगो, हर संडे फ्लेमिंगो वॉचिंग के लिए नहीं जाते. फ्लेमिंगो में गए तो Okay. ये बाहर घूमने गए हैं. नहीं, यहाँ पे बॉम्बे में ही है. He's gone for breakfast with friends and all. Let it be peaceful. See, here what happens, the endeavor is not one way. The endeavor is two way. आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, the endeavor is from your side to learn. टीचर एक बार पढ़ा के निकल जाता है, and sometimes teacher has nothing to do with you only. आपने कुछ उसको पगार से मतलब है. हाँ बोल रहे हो? समझे कि नहीं? Yes. But spiritual life, यहाँ पे the endeavor is happening, reciprocation is happening two way. जितना आप कोशिश कर रहे हैं भगवान के पास जाने के लिए, उससे ज्यादा प्रयास भगवान आपके पास आने के लिए कर रहे हैं. Therefore, the reciprocation always keep on increasing. समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे आप किसी dead subject matter से डील नहीं कर रहे. You are dealing with a भगवान. And भगवान क्या है? आपसे ज़्यादा excited है. Oh, he wants to study Gita. I also want to teach him. I also want him to learn and move ahead in the spiritual life. तो यहाँ पे आप कोशिश करते हैं, भगवान भी कोशिश करते हैं. आप और कोशिश करते हैं, भगवान और कोशिश करते हैं. ऐसे स्पर्धा चलते हैं यहाँ पे. इसलिए spiritual knowledge और spiritual kirtans, holy name is always giving you newer fresh experiences. Otherwise same knowledge जो 5,000 साल पहले बोला गया था, अभी तक कितना फ्रेश लगता है. जिसमें कभी amendment हुआ नहीं आज तक, कभी करेक्शन नहीं हुआ, एडिशन डिलीशन कुछ नहीं हुआ है. No new versions. कुछ नया जो एक बार बोला था 45 मिनट्स में अभी तक चल रहा है. बिकॉज दैट इज भगवान. जितना भगवान से आप जाओगे उतना भगवान आपके पास आने की कोशिश करते हैं. आप ये मत सोचो कि आप कुछ फूड ऑफर करते हैं तो इट इज जस्ट चिकन रिचुअल है, प्यूरिफाई करना है. नो, व्हेन यू ऑफर इज एक्चुअली ईटिंग दैट एंड इज गिविंग द कृपा इन दैट फूड, प्रसाद. एंड व्हेन यू ईट दैट यू बिकम ब्लिसफुल, जॉयफुल, गेट प्यूरिफाइड. राइट? तो यहाँ पे एंडेवर कैसा है? टू वे, नॉट वन वे. कॉलेज में आपका वन वे है, पढ़ाई कर लिया आप जितना. यहाँ पे ऐसा नहीं. कभी कभी यू मे लैग बिहाइंड द कृष्णा विल पुल यू आउट. अरे बहुत दिन से चैंटिंग नहीं कर रहे, लोग तेरे को बराबर कर देखता हूँ. अभी चैंटिंग नहीं कर रहे, बोला था चैंटिंग करेगा. So this is how it will work here. So that's why the things will appear ever fresh, right? इसलिए ये बहुत ग्राफिक उदाहरण है. वर्स नंबर 60 यहाँ पे जो दिया गया है,
बिल्कुल सॉरी इनका Yamunacharya. I have been enjoying an ever new transcendental humor. Whenever I think of sex life with a woman, my face once turns from it. It's a very bold statement. It cannot happen to us like ordinary living entities. But it will happen by the mercy of the Lord eventually. That's why Prabhupada says, Krishna consciousness is such a transcendently nice thing that automatically material enjoyment becomes distasteful. It is as if a hungry man had satisfied his hunger by sufficient quantity of nutritious eatables. Maharaj Ambarish also conquered a great yogi, Dhruva's Muni, simply because his mind was engaged in Krishna consciousness. Like that. So this is how, when we get the higher taste, it will be possible, otherwise it is not possible. You cannot, just by hearing philosophy, you cannot become devotee. नहीं तो गीता के कितने पंडित है भारत में? आजकल तो YouTube में तो बाढ़ आ गई है. Every now and then एक गीता का कोई पंडित आ जाता है. I know Gita and this is Gita and he will speak eloquently also. But आप उसको पूछो, हरे कृष्णा, this verse, ये ना यमुनाचार्य पीछे हट जाए. 20 मिनट में गीता सार, like 20 मिनट में आपको वो पूरा गीता का स्ट्रक्चर पता है. लेकिन 20 मिनट गीता can you live? Even 1 minute can you live Gita? Very difficult. You may give so many presentations. क्योंकि ये सब intellectual capacity कहाँ से आता है? It is product of your past karma. But developing a character is not actually depending on your past karma. But right now, how you develop your association, how you practice spiritual life, that decides your character. और character ज़्यादा important है, competence है. Sometimes you may not know the entire Gita, but if you know one verse and you can apply one verse, even half of the verse, even a word, your life is successful. Otherwise, you may study entire Gita, 18 chapters. In 2 years, we completed Bhagavad Gita. Then what? What are you going to do with your life now? You know, Prabhupada को एक बार व्यक्ति मिला था. Prabhupada बोले, what are you doing? He says, I am growing potatoes. Prabhupada बोले, what are you doing with your life? No, Prabhupada, I am just growing potatoes here and there. Farm में. Prabhupada बोले, what are you doing with your life? You know, what you are doing right now is for your body. But your life is different than this body. You are a spirit soul. What are you doing for that? बराबर है ये सब आवाज किस लिए आ रहा है? This is going on for what? जितने भी संसार में चहल पहल है सब किसके लिए चल रही है? उन चीजों के लिए चल रही है जो चीजें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि they are useless. They may be useful right now, but in the long run you have to simultaneously work for something which will actually go with you. अभी रहो, आप अच्छा कर रहे हो, नौकरी करो, बच्चों को बड़ा करो, पर साथ में ऐसी चीजों को भी काम करो जो आपके साथ जाएंगे. वो LIC का कौन सा है? जीवन के साथ साथ और झूठ बोलते हैं वो लोग. कुछ जीवन के साथ नहीं रहता है. जीवन के बाद तो पक्का कुछ नहीं देते वो लोग. बाकी लोग इंतजार करते हैं कि हाँ बनाओ पॉलिसी, जीवन के बाद हमको मिलेगा, आपको नहीं मिलने वाला. उनका जो स्लोगन है ना वो योगक्षेमम वहाम्यहम्, that is stolen from Gita. Do you know that? 9.22. And there is no copyright mark. अगर कल मुझे मौका मिले तो मैं उनको स्ट्राइक दे दूंगा. This is taken from Bhagavad Gita. You acknowledge it and write there. Taken from Bhagavad Gita. Direct verse है गीता का 9.22. योगक्षेमम वहाम्यहम्. We protect what you have and provide what you lack. That is the कृष्ण कहते हैं गीता में, आगे जाके बोलेंगे. इसलिए अभी आप गीता पूरा नहीं समझ पाओगे. This is what you are just understanding कि लाइफ स्पिरिचुअल होता क्या है. But actually कृष्ण क्या करते हैं आपके लिए, you will get to see in the verse chapter number 7 to 12 middle section. तब तक गीता आपको एक्चुअली अभी तक एंट्री नहीं हुआ है आपका. राइट नाउ जस्ट सरफेस में खेल रहे हैं. ओके, डिवोटी ऐसे होते हैं, वाओ. डिवोटी चैंटिंग करते हैं, वाओ. अच्छा, सेंस कंट्रोल करते हैं, ऐसे होता है, ओह. अच्छा, स्वर्ग ऐसा होता है, वैकुंठ ऐसे होता है, सब जान लो टर्मिनोलॉजीज. बट एक्चुअली आपके साथ क्या होगा समझ में आएगा आपको when you go to chapter number 7 to